Hey, last session of thermodynamics. How are you all doing? Can you hear me? Is my voice audible? What's happening? You should be able to see me right about now. There you go. क्या चल रहा है? सब लोग खाना वाना खा के आ गए? Yeah. So, what we do? Hey, Anish, what's up? What's up? Good to see you here. वो last session, I think. Yeah, you came towards the end of the last session, right? Good to see you now. Good to see you, man. बढ़िया है. So, what's the plan now? What's the plan today? What are we going to do? We're going to be finishing off entropy and Gibbs free energy and a little bit of theory of second and third law. Before we start, hey Poonam, what's up? Good evening. How are you doing? How are you doing? So before we start with that, मैंने कुछ होमवर्क सवाल दिए थे और लगता है कि आप लोगों को थर्मो से थोड़ा डर लगता है कि nobody responded to homework questions. खैर जरूरी है तो हम लोग जल्दी से सॉल्व भी कर देते हैं. Hey Lucy, what's up? Hey, familiar faces. 7 बजे वाला time is difficult for Lucy. I didn't see you there. Hey Deepanvita, what's up? Okay, we'll do this question quickly and then we'll go with आज का क्या plan है. Last session है thermo का. And trust me, इससे better thermo you're not going to find online. Okay, everything we've done, we've covered it. I know थोड़ा भारी है आप लोग के लिए, but this is it for need one stop shop. And in the description सारे 6 lectures के comment links है. You guys can check it out and share with your friends as well. All right. Heat of combustion of sucrose is given to you. How much heat will be liberated when this much of sucrose is burnt? So this is similar to the last question we did in this thing. B already. Oh, acha, Anish, you are in 11th. Acha, समझ में आया. Good. That's okay. But last session भी, शायद mostly you need to understand that because what happened in the last session was कि it was very मतलब doable for a 11th standard student as well. I think so. तो एक बार देख लेना बाद में and see if it makes sense to you. Maybe live में it's hard to keep up, but you can always check it out afterwards. It's unrelated, so to speak, to a lot of things. Khair, a lot of you are saying B to this one. Poonam is saying B. Anish is saying A. Okay, ठीक है. Let's see what do we do. So this is the mass of sugar, right? Glucose. The main thing you need to do, as I've told you, is to balance this equation. Balance it how? C12 यानी कि 12 यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है. H22 मतलब कि 11 यहाँ पे डाला. अब 12 का as it is और 11 का by 2. That's the number of oxygen you need. ठीक है. Why? Because ये बैलेंस करने से आपको पता चलता है, अच्छा ठीक है, इससे हम लोग को जो है ये 342 के लिए इतना निकलेगा एंड 17.1 से कितना होगा. दैट्स ऑल देयर इज एक्चुअली. आई रियलाइज कि इस वाले में बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी. आई वाज लाइक गोइंग ऑन, वेट मिनट, बैलेंस करने वाले इसमें ऑक्सीजन तो पूछा ही नहीं है, तो मे बी बैलेंसिंग वाज नॉट रिक्वायर्ड हियर. ऑल यू नीडेड टू डू वाज दिस. ये डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से हो जाता, राइट? लुक्स लाइक 1/20 टाइम्स ऑफ दैट है. सो 1/20 ऑफ 1350 इज सिंपली 67.5 व्हिच इज द आंसर. सिंपल सा सवाल था. ओके, वेट, है 13.5? एक मिनट, let me just look at this once again. Is it 13.5? हाँ, 13.5 divided by 20 ना. सोचने दो, क्या what did I do? 1, this goes twice, 20, 20. तो 13.5 divided by 20 is 67.5, है ना? Yeah? Is that okay? तनु, आपने भी B बोला, मुझे समझ में नहीं आया. 13.5 किलो कैल. अच्छा, I didn't understand that. खैर, सुक्रोज का मोलर मास 342 ग्राम पर मोल है, तो आंसर शुड बी ए. ठीक है, ओके, गुड जॉब दीपान्विता एंड अनीश. ऑलराइट तनु, आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है, 67.5 होगा. अगला वाला, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज फाउंड टू बी -Q. हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल एट द सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? अरे ये वाला तो डायरेक्ट है, बट इसमें बैलेंस करना जरूरी होगा. क्यों? क्योंकि द इक्वेशन डेल्टा H will be equal to Q, well, delta H will be equal to delta U plus work done. प्लस या माइनस देखते हैं, लिख लेते हैं, बोलने ज्यादा बेटर लिखना, राइट? सो ये पूरा रिएक्शन है. अच्छा, बिफोर आई गिव यू ऑल ऑफ दैट, पूनम इज वेरी कॉन्फिडेंट इट्स D. ठीक है पूनम, आपकी तरफ से मैंने D के अगेंस्ट 1 मार्क लगा दिया है. इसको बैलेंस इसलिए करना जरूरी है because delta Ng is in the mix. Why delta Ng? Because delta H is delta U plus delta Ng RT. So technically delta U is Q plus W. तो अगर मैं delta H को लिखूं तो it will be delta U minus W, क्योंकि W is equal to minus P delta V और minus delta Ng RT. Minus of minus becomes plus. तो मैंने initially plus गलती से W बोल दिया था, बट चलो लिख लिया ना, अब तो पक्का हो गया यही है. अब ये delta Ng कैसे आएगा? डेल्टा Ng आएगा ना, यहाँ पे देखो,
2 मोल इधर गैस के, 3 मोल इधर गैस के, तो डेल्टा एनजी हो गया -1। अब अगर डेल्टा एनजी -1 हो गया तो वही तो होगा सिर्फ, राइट, इट विल बी Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस RT। बट ये नेगेटिव क्यों क्यों लिखा है? ओ अनीश, लवली लवली, नेगेटिव होगा आंसर में। आई लाइक दैट इनसाइट। यू सी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे क्लियरली लिखा है कि हीट ऑफ कंबस्शन इज नेगेटिव क्यू। इट मेक सेंस, हीट रिलीज हो रही है। ओके, सो नेगेटिव क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस RT, which is why you have to get this to be RT minus Q. Is this okay? Let me just go back there once to make sure, क्योंकि आप लोग में से कुछ, पूनम तो बोल रही थी D और अपूर्व बोला नेगेटिव होगा आंसर में। ओ अपूर्व, सॉरी अनीश, यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, नेगेटिव पिछले वाले में क्या? रुको वापस जाते हैं। यस, हीट लिबरेटेड है इसलिए ये वाला वैल्यू चलती है। ठीक है, गुड जॉब। ये वाला सवाल समझ में आया? क्यों देयर इज अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, यू नीड टू अकाउंट फॉर, एंड हेंस it is going to be option A and not option D. Is that okay, Poonam ji? You're all right? Why it's not D? क्योंकि heat की value is negative Q and not just Q. Cool? Yeah? यार ये थोड़ा, I know, this is one of those questions like, oh my god, ये कैसे मिस हो गया? But it's okay. Now you know. Okay? Cool. And yeah, delta U is basically, you just take it to the other side. So delta U is equal to RT minus Q. यही है, which is the answer. Cool. All right, let's get started with today's session. And ये तो more of कहानी होने वाली है. Good evening, up king. What's up? Yes, yes. It's okay. It's okay. पूरा होता है. Absolutely, Anish. Spontaneity in capitals, because NCERT में capital में लिखा है, हमने भी लिखा है. Gives energy and change and equilibrium. ये भी NCERT में capital में लिखा था. खैर, लास्ट सेशन में क्या क्या बोला था कि देखो, अगर रेगुलरिटी स्ट्रक्चर की है, तब अगर रेगुलरिटी स्ट्रक्चर की कम हो रही है तब एंट्रोपी बढ़ रही है। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड से एक्वस सॉल्यूशन से गैस। नॉर्मली लोग इस एक्वस सॉल्यूशन को स्किप कर जाते हैं। मैंने एक्वस सॉल्यूशन भी यहां पे लिखा है। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों? डोंट वरी, एक सवाल होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज द ऑर्डर। खैर, लोएस्ट एंट्रोपी इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हाईएस्ट इज गैसियस स्टेट। ये सब आपको मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूं। In any physical or chemical phase, as a system moves from a less random to a more random state, entropy increases. But are there cases, where you can definitely just see and say, हम लोग डेल्टा एच की बात नहीं कर रहे हैं, right? Only talking about entropy. इन केस में एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? Precipitation. मैं NaCl और AgNO3 को ऐड कर रहा हूं. What I'm getting is a precipitate of AgCl. You see that beautiful cloudy thing that gets formed? That is a precipitate of AgCl. A downward arrow means precipitate. In this case, is the entropy increasing or decreasing? Hey, hello, up king. Plasma state. We don't study it at all. Plasma state तो यार मैंने I think थोड़ा बहुत किया था. We don't study it, we use it to make nanoparticles and whatever. Just very, very hot gas, ionized gas is just plasma. May sound fancy. Decreases, absolutely. Beautiful answer. Okay, क्योंकि जो हमारे पास था वो less disordered state था, और नहीं, मोर डिसऑर्डर स्टेट और कम डिसऑर्डर हो गया, राइट? सो परफेक्ट, गुड जॉब। व्हाट अबाउट दिस ओजोन टू ऑक्सीजन? इसमें एंट्रोपी कम हो रही है कि बढ़ रही है? और नेक्स्ट वाला सवाल बाय द वे इज अबाउट द थंबनेल इटसेल्फ। सो या, इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है? डिक्रीज और कम होना सेम ही है ना? इज दिस इंक्रीज या डिक्रीज? ये आंसर मुझे प्लीज दीजिए। व्हाट्स हैपनिंग? प्लाज्मा स्टेट इज जस्ट अ फैंसी ऑफ सेइंग कि गैसियस एटम्स at a very, very high energy state so that वो ionize हो जाए, ठीक है? Plasma is just a fancy way of saying that. What about this one? Increase या decrease? देखो यहाँ पे 3 mole, 2 mole is basically becoming 3 mole, यानी कि increase ही हो रही है ना? So here entropy increases, ठीक है? 2 molecules become 3, ये तो count करके देख लो। Poonam, you see why this one's increase and not decrease? Yeah, good job, Anish. What about this? Graphite to diamond. Graphite seems like, there is a plane in which they can slip through, इसलिए पेन लिख पाता है, not pen. Pencil is able to write because these layers slide over each other. ये सब आपने तो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं ना? और ये बहुत ही ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है भाई, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन एंड ऑल ऑफ दैट. हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब 6th 7th ग्रेड में, अभी तो देयर आर अदर थिंग्स, बट ठीक है. सो इन दिस केस क्लियरली एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, राइट? ओके, सिंपल स्टफ. सब्लिमेशन मतलब सॉलिड बिकम्स गैस, तो इसमें तो डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है, ये तो हम लोग लास्ट टाइम भी देख चुके हैं, ठीक है? व्हाट अबाउट दिस? मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग में सॉलिड बिकम्स लिक्विड, यहां पे भी इंक्रीज हो रही है. सिंपल, राइट? सिंपल. ओके, ऑसम.
ग्रेफाइट डायमंड डिक्रीज इंक्रीज ड्राई आइस इट इज। सही है, जल्दी जल्दी हो रहा है, गुड जॉब गुड जॉब। लूसी, विद ग्रेफाइट डायमंड डिक्रीज हाउ? लूसी, ग्रेफाइट इज लेस डिसऑर्डर्ड, अरे छोड़ो, एंट्रोपी ऑफ दिस is less than entropy of, let me get this right, this is a low entropy state, okay, this is a high entropy state। क्यों? क्योंकि देखो ये सब, ये these layers can move with each other, right? ग्राफाइट, इनफैक्ट वो पूरा सिंगल लेयर ग्राफीन जो हम रिसर्च करते हैं कि ये बना था, was only possible because तुम ग्राफाइट से एक एक लेयर आइटम की निकाल सकते हो, मतलब इट्स पॉसिबल फॉर यू डू ऑल ऑफ दोस फंकी थिंग्स। डायमंड में कुछ नहीं कर सकते ये सब। इनफैक्ट ड्रिलिंग टिप्स में जो हार्डेस्ट मिनरल्स मेटल जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी टिप्स आर मेड ऑफ डायमंड्स, ओके, सो डायमंड कट्स टू एनीथिंग, सो दिस इज अ वेरी वेरी लो डिसऑर्डर स्टेट, ओके, सो एंट्रोपी डिक्रीज, ठीक है लूसी, आई होप दैट्स ओके। आइस टू वाटर हाउ? आइस टू वाटर तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है ना, तो इधर तो इंक्रीज ही होगा, राइट? लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड, एग्जैक्टली। मेधा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग लूसी आउट, गुड, ओके, ग्रेट। सो अगर मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ रहा है तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। सो देयर इज दिस टर्म जो मैं अभी तक बोल रहा था कि एंट्रोपी, लेट्स पुट सम वैल्यू टू इट। इट इज सेड दैट एंट्रोपी चेंज, डीएस यानी कि चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इज प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम। अब ये क्यू रिवर्सिबल क्या बला होगी? यू रिमेंबर पहले सेशन या दूसरे सेशन में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात की थी, और मैंने बताया था कि ये दोनों सिर्फ पार्ट्स हैं, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ डूइंग वर्क, बट this is a state function and this state function happens to be dependent on q reversible. This is very similar to delta u being qv, मतलब heat at constant volume, वो भी एक पाथ था, या delta h being equal to heat at constant pressure, वो भी एक पाथ था। p is not path, p is pressure, ठीक है, and this is volume, okay, so I'm saying that delta s is proportional to the heat but reversible heat। सोचिए इसको, अभी दिमाग में रखिए, विल अप्लाई इट। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये बताई गई है कि जो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर। बट ये बात थोड़ी पेट में जमी नहीं। एक तो लिखा है कि यार अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रैंडमनेस बढ़ेगी, दूसरी चीज बोल रही है कि ये लिखा है कि डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, बट नॉर्मली व्हेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, देन अगर प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम घटता है, बट दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, बट उसका इफेक्ट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर बहुत ही लो टेम्परेचर है, मतलब से 100 केल्विन, ओके, और बहुत हाई टेम्परेचर है से 300 केल्विन, तो इन दोनों में द चेंज इन एंट्रोपी विल बी अ लॉट मोर ओवर हियर एज कंपेयर टू हियर। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। दिस इज व्हाट इट मींस। दिस डज नॉट मीन कि एंट्रोपी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दैट इज नॉट व्हाट इट मींस। इट मींस yes, as temperature increases, entropy increases, but the effect is a lot more pronounced at lower temperatures, ठीक है? That is what this expression means. ये समझ गए आप लोग? Is this okay? So you see the white line, which is the change, is a lot more at lower temperatures compared to higher temperature. That is what it is trying to say. Yeah, the change is a lot more. 100 Kelvin 300 मैंने ऐसे ही लिख दिया, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूं कि लोअर टेम्परेचर पे द चेंज इज हायर। रिमेंबर चेंज, ये P और V का ड्रामा जो था, ड्रामा नहीं, बहुत अच्छा था गैसेस के बारे में, चेंज की बात नहीं हो रही थी, वो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही थी। तो डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग यहां चेंज की बात कर रहे हैं। डेल्टा एस प्रोपोर्शनल टू 1/T का ये मतलब है, ठीक है? इज दिस ओके? ओ पूनम, दैट्स ओके, बाद में देख लेना, इट्स ऑल राइट। यस एग्जैक्टली, मेधा, ब्यूटिफुल, मेधा हैज सेड इट इन वन लाइन। जो मैं पिछले 1-2 मिनट में बोल रहा था, मेधा ने एक तीर निशाने पे मार दिया है। चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लवली, स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया? क्यों? वो तो हम लोग थोड़ा मैथ से समझ जाएंगे, कैसे होता है वो मैथ से आपको दिखा दूंगा, बट थियोरेटिकली दिस इज द आइडिया, ठीक है? कूल। तो इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक इक्वेशन में आते हैं। तो एट हायर टेम्परेचर एंट्रोपी ऑलरेडी हाई है, तो चेंज बहुत कम नजर आता है। लोअर टेम्परेचर एंट्रोपी बहुत हाई होती है, ठीक है? हीट एडिशन चेंजेस एंट्रोपी बाय स्मॉलर अमाउंट कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, गुड जॉब,
गुड जॉब दीपान्विता। पूनम इट्स ऑल राइट, स्टिक अराउंड इफ यू कैन, अदरवाइज डोंट वरी, बाद में आ जाना। मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना? अच्छा, आपके यहाँ बारिश हो रही है? श्योर, बैंगलोर में क्या सूखा पड़ा है, गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। खैर, इन दोनों में को कंबाइन करके आई गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एस। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी कहानी पहले बैकग्राउंड बना दी। इसकी यूनिट क्या हो गई? अगर इसकी यूनिट है ऑफ एनर्जी, हीट इज एनर्जी राइट, दिस हैज यूनिट ऑफ जूल। टेम्परेचर की यूनिट तो आपको मालूम है, केल्विन हो गया, तो मेरे सर के ऊपर लिखा है जूल पर केल्विन, दैट्स इट। सो दिस इंटरेस्टिंग, डेल्टा एच मोस्टली हमने देखा है किलो जूल में था, डेल्टा एस हम देख रहे हैं कि जूल में है। बी केयरफुल अबाउट, ठीक है? 1000 का फैक्टर में फर्क है, बी केयरफुल अबाउट दिस। न्यूमेरिकल्स में आएंगे न्यूमेरिकल्स। खैर, एक छोटा सवाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद अ डिक्रीज इन एंट्रोपी? वी वांट टू डिक्रीज। हाय फ्रेंड्स, कितनी बार हाय बोलोगे आप? किंग बैठ जाओ, 2 मिनट सुन लो बातें, सवाल दिए जवाब दो, हाय हेलो तो हो गया, ग्रेट। आई एम न्यू टू, आई बीन हियर फॉर जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स। अब किंग, गुड टू सी यू हियर। इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद डिक्रीज इन एंट्रोपी? डिक्रीज इन एंट्रोपी, सॉलिड तो गैस, शुगर प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन, और NHC प्लस HCl गिव्स NH4Cl सॉलिड, प्रेसिपिटेट बन रहा है यहां पे, मतलब PPT। A प्लस B गिव्स अ मिक्सचर, मिक्सचर भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये वाला इंटरेस्टिंग, हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे मे बी। ओके, अनीश इज सेइंग B, मेधा इज सेइंग C, दीपान्विता C। अरे ये क्या हो गया, रुको एक मिनट। हाँ, दीपान्विता सेइंग सी, मेधा सेइंग सी, दीपू सेइंग सी। लगता है सी होगा आंसर। देखिए, ये हमारे पास दो गैस कंबाइन होकर सॉलिड बन जा रही है। शुगर और वाटर सॉल्यूशन में एक्चुअली एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसमें एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, सॉलिड टू गैस, इसमें भी इंक्रीज हो रही है। लास्ट वाला पॉइंट क्यों हो रही है, वी विल कवर इट, विल कवर इन नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड्स। आई नो ये मेरे पीछे आ रहा है, बट इट्स ओके, आप लोगों के लिए नहीं है, फॉर एनीबडी रीडिंग दिस लेटर ऑन आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, उनके लिए, ठीक है? हे दिवांकिता, न्यू पर्सन, हे प्रीतम, वेलकम बैक। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये दूसरा वाला पॉइंट, जस्ट क्लैरिफाइंग फॉर अनीश एंड एनीबडी एल्स वाचिंग दिस लेटर ऑन, व्हाई इज द एंट्रोपी बढ़ रही है? देखो, शुगर इज वेरी ऑर्डर्ड, पानी भी चिल है। शुगर को पानी में डालते ही पानी का भी स्ट्रक्चर हैपेजार्ड हो रहा है, और शुगर तो भाई बिल्कुल ही कंप्लीटली उसका क्रिस्टल अमेजिंग लैटिस गॉन, राइट? तो वो बहुत डिसऑर्डर बढ़ रहा है शुगर का, एंड वाटर थोड़ा ऑर्डर हो रहा है, हाइड्रेशन ऑल, बट डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है एंट्रोपी, ठीक है? आई होप दैट्स ओके अनीश एंड एवरीबॉडी एल्स वाचिंग लेटर ऑन। कूल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन 0? एम्स का सवाल है दोस्तों, बताइए इसका जवाब। डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन 0, ये एस नॉट मतलब बस 1 बार पे, ठीक है? दैट्स ऑल, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। बट देखो इस पे क्या आंसर होगा। गुड टू सी यू दीपान्विता, या इस वाले का ट्राई करिए। सिमिलर चीजें जो हमने पहले ही की थी, you just have to identify कि किस जगह एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है इन द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, और इफ यू वांट टू राइट डेल्टा एस यू कैन आल्सो डू दैट। ये मैंने 1-2 मिनट, गुड टू सी यू, ग्रेट ग्रेट दीपान्विता। Okay, so hey, that means you're subscribed. That's awesome because only you can only comment after you subscribe. Deepanvita is saying C. Okay, C for confidence. मैंने एक बार पहले आपको बोला था, just as we started this off, कि देखो गैस इज ग्रेटर देन एक्वस, इज ग्रेटर देन लिक्विड, इज ग्रेटर देन सॉलिड। ये बीच में एक्वस वाली चीज काफी टीचर लोग, नॉट टीचर बट काफी जगह स्किप कर देते हैं। टीचर ऑल ग्रेट, बट कभी कभी स्किप हो जाता है लोगों से। एक्वस क्यों ज्यादा है लिक्विड से? देखो, मैंने अभी बताया जस्ट, लिक्विड में जैसे ही मैं कुछ और डालूं तो लिक्विड का तो डिसऑर्डर बढ़ ही रहा है, और जो चीज डाली उसका भी डिसऑर्डर बढ़ रहा है। वो थोड़ा सा याद है, अच्छा 11th में है ना, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे तब वी से कि अच्छा when you dissolve something in water you assume it's in इतना ज्यादा डाइल्यूशन कि वो एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्ट ना करे, तो डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक्वस स्टेट में, इसीलिए एक्वस ज्यादा है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ी कहानी बता दी। मेधा इज नॉट श्योर, दैट्स ओके। ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, सी और डी, राइट? दैट्स गुड। इन आवर कॉन्वर्सेशन इट्स गुड टू हैव दीज ओपन, यू नो, बिल्कुल कीप इट क्लियर बिटवीन अस कि हे मुझे लग रहा है इट कुड बी ईदर टू। अगर बाय द वे इफ एनीबॉडी ऑन द कमेंट्स यू नो आर वाचिंग दिस हैव दिस आइडिया कि ये हो सकता है वो सकता है, कुछ भी बता दो, जो भी माइंड में चैट में डाल दो, इट विल बी इजियर फॉर मी टू हेल्प यू। ओके, डोंट होल्ड बैक इज ऑल आई एम सेइंग। इफ यू आर ऑन द, आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच द वीडियो डोंट कमेंट, दैट्स ओके, बट इफ यू डू इट विल हेल्प यू, दैट्स व्हाई आई एम एनकरेजिंग यू। खैर, दीपान्विता सेइंग सी, मेधा सेइंग सी और डी, लेट मी पुट अ कर्ली ब्रेसेस देयर, तनु सेइंग सी, दीपू सेइंग सी। ठीक है, चलो देखते हैं। आई विल टेल यू व्हाई एस डी नहीं है, आई विल स्टार्ट विद दैट। चलो नहीं, चलो एक एक करके देखते हैं, एक करके देखते हैं। पहला वाला डेल्टा एन जी इज लेस देन 1, ओके, इट्स -1।
यानी कि डेल्टा एस इज नेगेटिव, है ना। ये वाला भी वही चीज है, डेल्टा एन जी इज -2, हेंस डी नहीं होगा। इज दैट ओके? मैं एन जी की क्यों बात कर रहा हूं? यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट सम फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, राइट। अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं तब तो पक्का एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट्स द फर्स्ट चेक। अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट सर्टेनली एंट्रोपी कम ही होगी एट आवर लेवल। वी कैन, देयर इज अ क्विक हैकी वे ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज देखिए वन एस्पेक्ट इज लर्निंग, सेकंड एस्पेक्ट व्हिच इज टेस्टिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि दो अलग अलग चीजें, यू ट्रीट देम डिफरेंटली, बिल्कुल अलग माइंडसेट फॉर बोथ। ये टेस्टिंग वाला मोड है, ठीक है। और तीसरा कौन था? ये तो डेफिनेटली लेस देन 0 बिकॉज यू नो एक्वस इज बिकमिंग सॉलिड इस ऑर्डर के हिसाब से, हेंस दिस मस्ट बी द आंसर। और देखो सॉलिड बना रहा है एक्वस, मैंने आपको डाला था एक्वस मतलब देयर इज आल्सो वाटर इन द मिक्स, तो पानी में डाला और ये बहुत डिसऑर्डर बढ़ गया, इसका डिसऑर्डर इंक्रीजेस। ओके, ऑसम, गुड गुड गुड, ग्रेट। एक और सवाल, 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, the work done, वर्क डन, बताओ वर्क डन क्या हुआ, बताइए। लास्ट सेशन है ना, तो पहले सेशन के भी सवाल बीच बीच में क्रीप इन कर जाएंगे। क्या हो रहा है इसका? ए बी सी आर डी, देखो स्पॉन्टेनियसली मतलब यूजुअली irreversible process, and also if P is equal to 0, P external times delta V will be equal to 0, so work done will be 0, खत्म। du also is 0, th also is 0, ठीक है। बट एंट्रोपी उफ बहुत जीरो नहीं है, डेल्टा एस पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है, ठीक है। गुड जॉब अनीश एंड बैग जी, व्हाट्स अप, गुड टू सी यू अगेन। यस, डी इज द राइट आंसर, गुड जॉब। एक और सवाल देखते हैं। इन डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी मुश्किल है, जैसे कि ग्रेफाइट टू डायमंड मुश्किल है, हेंस इट इज कैरीड आउट बाय द शोन पाथ। वैसे जब ग्रेफाइट टू डायमंड बनाओ तो ना बहुत ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है, ऐसे ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। सिमिलर थिंग, एस इज ए टू सी, देयर आर 3 पाथ्स, ए टू बी डायरेक्टली मैं नहीं जा सकता हूं, इसलिए मैं जाता हूं ए टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू बी। तो उन सबका मुझे एंट्रोपी वैल्यूज दी हुई है। सो एंट्रोपी चेंज फॉर ए टू बी क्या होगा? अरे ये तो वही हेस लॉ वाला आइडिया ही लगाना पड़ेगा। हेस लॉ मतलब स्टेट फंक्शन ना, हेस लॉ आई नो इज फॉर डेल्टा एच एंथैल्पी, बट स्टेट फंक्शन का आइडिया स्टिल वैलिड हियर, मतलब आई डू दिस इन 1 step or 10 steps is the same thing. So what do you think the entropy change for this process will be? Preetham, absolutely right, 0. Hey, good man, good to see you again, Preetham. Yeah. What's happening here? इसको कैसे करेंगे? अगर if I just mark this as 1, 2 and 3, I just have to, वो you remember हमने जो उसमें किया था, वो पूरा थर्मोकेमिस्ट्री में एक रिएक्शन आगे की थी, एक उल्टी की थी, एक सीधी की थी, वही तो करना है यहाँ पे। सो अगर A to B जाना है तो I have to add 1 and 2 and subtract 3. Why subtract 3? Because D मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए B. I don't want D, I want B. So I reverse this reaction basically. If I reverse this, that is the same as into -1. Same Hess law का idea here. Hess law is just an extension of the fact that these are all state functions. Delta S यानी कि entropy is a state function. Just a quick reminder. है ना? तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं। आंसर सिंपल, 80 - 20 मतलब 60 होगा, है ना, प्लस 60 होगा, राइट। ऑसम, व्हाट अप अनीश, बैग जी, तनु एंड दीपू, परफेक्ट परफेक्ट, गुड जॉब। अच्छा ये वाला सवाल क्या है भाई? कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, आई, और डेल्टा एच रिएक्शन दिया हुआ है, इसको कैसे करें? एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, अभी सराउंडिंग क्या बोला है? वो पहला सेशन याद है आप लोगों को, इसमें जब मैं डब्बे में खड़ा था, दैट वाज अ कूल थंबनेल की सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, वो वाला सराउंडिंग। एक बात बताओ, जब हीट निकलती है रिएक्शन, ये वाला मैं समझा देता हूं, डोंट वरी, इफ यू नो द आंसर बताओ, बट इफ यू डोंट दैट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। जब ये हीट मैं बोल रहा हूं कि हीट ऑफ रिएक्शन -286 जूल किलो जूल, ये हीट आई कहां से आई? अगर ये हमारा है सिस्टम, एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग, तो ये हीट जो बाहर गई, आई नहीं एक्चुअली बाहर जा रही है, दिस केस हीट इज गोइंग आउट, कहां जा रही है? अब कहां जाएगी? इट हैज नोवेयर एल्स टू गो, इट विल गो इनटू सराउंडिंग, है ना। तो जो सिस्टम से हीट गई या आई, सराउंडिंग में ही जाएगी या सराउंडिंग से ही आएगी, दैट इज द मेन थिंग।
So this way I can confidently say heat flows from system to surrounding. पहले सेशन में मैंने बैंक का आइडिया दिया था कि देखो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, व्हिच मींस इट्स लाइक अ बैंक, मनी इन मनी आउट, नो डायरेक्शन बिजनेस. तो अगर मनी आ रहा है तो कहां से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा है, बाहर से आ रहा है, राइट? बाहर इज सराउंडिंग. In this case पैसा बाहर जा रहा है, heat is flowing outside. Heat is flowing outside, that means that oh, for the surrounding ही point of view से अरे गर्मी अंदर आ रही है, right? From the surroundings point of view heat is coming in, hence उसके लिए it's great. तो delta S system is Q reversible by T, delta S surrounding is negative Q reversible by T in this case. ठीक है, 50-50. अच्छा, -1-0 thing. ठीक है, ठीक है. Deepu saying D as well, Tanu saying A. Okay, ठीक है, चलो चलो, नो प्रॉब्लम. ये 104 का नंबर कैसे आया? थोड़ा कंफ्यूज आ गए हम. एक मिनट, नंबर अलग कैसे आया तुम लोग ये बताओ. अच्छा, किसी ने T बाई आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया क्या? दोस्तों फॉर्मूला है Q रिवर्सिबल बाई T, उल्टा मत करो. ये तो नहीं होगा ना, इट विल नॉट बी C और D. आई नो व्हाट हैपेंड हियर, उल्टा कर दिया आपने, राइट? डेल्टा सिस्टम इज दिस एक्सप्रेशन. You did T by Q, hence you got that weird thing. Maybe, I think, I'm not sure. Maybe you did that. खैर, delta surrounding is negative Q reversible by T. ये समझ में आ गया ना? इतनी कहानी इसलिए समझाई मैंने. Now everybody change their answer to A. Good job. Retracted, message retracted. It's like redacted file. सब कुछ काला काला होता है ना, वो लोग टीवी शो दिखाते हैं, FBI, CIA, they have all these files with black marks. That's what it looks like to me. Message retracted. This is hilarious. This is hilarious. You formed this formula. It's okay. होता है, होता है. Good job यार, मुझे मजा आ रहा है. I like this. It's all right. It's all right. It's all fun and games. It's okay to make mistakes. That's how you learn, right? They're not mistakes. They're learning experiences. The word mistake is such a has a negative connotation with it. अच्छा काम है, करते रहो. देखो यहाँ पे वो दूसरा आइडिया भी आ रहा है. This is in किलोजूल, मतलब in 10 power 3, और ये है यूनिट, इसकी हो रही है, हम तुमको जूल में मिल रहा है, बट ये बहुत हाई है. ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही हाई वैल्यू एंट्रोपी की, बहुत ही हाई है. खैर छोड़ो, doesn't matter, but yeah. So with this, let's move on to the next theory idea, which is entropy change during phase transformation. Simple है, मैंने दिखाया था लास्ट में, अभी उसको we just putting a number to it. अगर हम लोग बोलें फ्यूजन, फ्यूजन मतलब सॉलिड बिकम लिक्विड, मतलब हीट अंदर जा रही है. अगर हीट अंदर जा रही है तो एंट्रोपी चेंज, अरे एंट्रोपी चेंज, अरे पॉजिटिव होगा ना. सॉलिड बिकम्स लिक्विड, या एट व्हाट टेम्परेचर? एट अ फिक्स टेम्परेचर विच इज द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव. सिमिलरली I can go ahead and do vaporization. Vaporization is straightforward. Liquid becoming gas. अब यहाँ पे वही फर्क पड़ेगा कि I am going to do that constant pressure and I will call this, ये वाला भी constant pressure पे था by the way. Didn't mention that, but sure. All things at constant pressure and constant temperature. Okay, all of these phase change process happen at these things. So I can say that delta vaporization is this. ये भी positive value हुई. Positive क्यों? Gas is more disordered than liquid. Always check this positive negative with that idea. Last वाला क्या है? अच्छा, yeah, this one's boiling point. Last idea, हाँ, sublimation. Sublimation also is solid to gas. अब ये तो आप समझ गए, बट उल्टा होगा तो क्या होगा? अगर sublimation के बाद deposition हो गया तो क्या होगा? The value will be exactly the same, but just negative of this. That's all. Similarly, let me go back here and say कि vaporization को उल्टा क्या होता है? Condensation. राइट, अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो विल बी नेगेटिव ऑफ दिस, है ना. और ये वाला क्या था? लेट्स जस्ट गो बैक वंस. ये क्या है? मेल्टिंग. मेल्टिंग ऑपोजिट क्या होता है? फ्रीजिंग. ये भी भूल गए हम, बढ़िया. फ्रीजिंग में नेगेटिव ऑफ दिस, बस. ठीक है, बस हो गया, खत्म फेज चेंज. अरे आंसर दिखा दिया, माफ करना, फिर भी कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं. The enthalpy of fusion of water is 1435 calorie per mole or 1.435 kilocalorie per mole. Molar entropy change क्या है? Since मैं आंसर दिखाई चुका हूं, I'll just show this to you. 1435 divided by 273. Obviously divided by 0 doesn't make sense. Right? You got to divide by 273 and the only answer you get is approximately what? 7 के आसपास? नहीं, 7 तो नहीं होगा ना. अच्छा, this is like almost like 1500 by 300, right? Approximately 5 के आसपास हो जाएगा. The only answer that fits is this guy. So be careful, it's not 0.5 and 5. And ये देखिए, ये जो स्कैम किया मैंने, ये हम लोग कर सकते हैं अगर आंसर्स आर दिस फार अवे. लिखित में बोल रहा हूं, स्कैम्स आर ओके इफ दिस आंसर इज दिस फार अवे, अपार्ट, नॉट अवे, अपार्ट. So I can do all these funky things. Cool. Okay.
Hence the answer is C and not A. Poonam, I hope this is okay. Cool. Let's move on to the entropy change for an ideal gas. थोड़ा theoretical होने वाला है. अगर पिछले सवाल में कोई डाउट था तो पूछ लो, but I think it was very direct, इसलिए I didn't spend time on it. But ठीक है, cool. What is the entropy change for an ideal gas? You remember the last session, or if you don't, even if you don't, it's okay. हमने बोला था कि देखो, there's this nice little thing जहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एक चेम्बर और यहाँ पे गैस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और फिर ये चेम्बर मूव होता है और ये गैस सब जगह चली जाती है. तो इस प्रोसेस में डेल्टा एच इक्वल टू 0, बट डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0. तो इस टाइप ऑफ सेटअप में हाउ डू जस्टिफाई कि इसको कैलकुलेट कैसे करोगे इन अ केस लाइक दिस. और ये केस नहीं तो कोई और केस जहां पे इवन इन केसेस इवन व्हेन डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी हाउ डू यू कैलकुलेट दिस अमाउंट, इसको कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मैथ. ये बहुत जरूरी है कि ये इक्वेशन हम लोग याद रखें कि इट्स डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी. I think NEET में this thing is not going to get tested too much, but irrespective of the process, what formula you will use is just this. मतलब कि adiabatic हो या reversible हो process irreversible हो या isothermal कुछ भी हो, but you will always use dq reversible by t for ds. I don't think it's going to be tested in NEET, but just a bit of a theoretical idea. ठीक है? So let me erase that out. ठीक है. Using this expression here, I can substitute dq reversible to be equal to du minus dw. ठीक है. अब du क्या बोला है? du you remember has to do with q at constant volume. ये एरो यहां से होनी चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, और ये क्या है? माइनस p डेल्टा v. बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ डेल्टा वील डू दिस. ठीक है. सो यू गेट दिस हियर. क्यों? ये है प्रेशर कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर, और अगर नहीं भी है तब भी चलेगा, बट दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स गुड ईदर वे. सो नाउ आई हैव एन इक्वेशन वेयर देयर इज dt बाई t एंड ये dv है, ये भी बाई t आ जाएगा इधर, है ना. बट p बाई t कैन अगेन बी रिमूव्ड, राइट. रिमेंबर आई टोल्ड दैट p ऑफ गैस इज बेसिकली इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. वही चीज फिर से लिखी यहां पे. तो आई कैन राइट इट डाउन इन दिस मैनर. वो यहां क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. देखो मैंने बस ये लिखा कि PV इक्वल टू nRT, यानी कि P बाई T इक्वल टू V बाई NR, है ना. वही किया है बस. तो बेसिकली सब जगह हम लोगों ने ये P बाई T को लिखा है V बाई NR. इज दिस करेक्ट? नो. व्हाट एम आई सेइंग? NR बाई V. V बाई NR थोड़ी ना होगा. मैथ्स इज फनी ना, इवन फॉर मी. खैर एक बार फिर से चेक करते हैं. यहां पे आया t, ये t गया उस तरफ, अगर ये t उस तरफ गया तो वहां जाएगा. कूल. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस. ये नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख रहा था. इज दिस एक्सप्रेशन ओके? स्मॉल अमाउंट ऑफ मैथ, बट कोई डाउट है यहां पे? फिर से एक बार बता देता हूं कैसे आया. राइट. दिस इज द सेम एज डेल्टा यू एंड ऑल आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड बाय t. ये t मैं यहां पे लेके आया हूं. दैट्स व्हाई दिस इज कम हियर. एंड आई ऑल्सो हैड दिस एज p dv. P को मैंने लिखा to be equal to nRT by V. That's all. ठीक है. वो यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. उससे T कैंसिल हो गया तो NR by dV बचा. Now you see something interesting has happened. अरे वाह, good job unknown. That's the Akash test. Brilliant. That's very nice to know. Good job. I hope these things helped you. खैर, now you see इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. लॉग आएगा दोनों जगह, dv by v है, dt by t है. सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई फैंसी चीज नहीं है. इट्स वेरी डायरेक्ट. द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज साइंस. इन दिस केस द साइन इज क्लियरली गोइंग टू रिमेन द सेम. कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, जो था वही है. मतलब कि आई कैन से दैट डेल्टा सिस्टम इज ncv ln t2 by t1 nr ln v2 by v1. अरे वाह. तो cv और वॉल्यूम के केस में ये कर सकते हैं. कोई डाउट्स है? Are you guys doing okay? थोड़ा भारी हो गया? Anything you want me to repeat? Yeah? Please let me know. I know कि ये थोड़ा सा heavy है. Thermodynamics tends to get a little heavy. Hey, मुझे chat पुराना दिखाई दे रहा है I think on my phone for some reason. Anyway, this chat's going all right. So, any doubts so far?
वी गुड? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? या आगे बढ़ा जाए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि थोड़ा और इंटीग्रेशन हो रहा है। लास्ट पार्ट ऑफ मैथ, आई स्वेयर, लास्ट छोटा सा एक मैथ्स वाला पार्ट है बस. लेट्स जस्ट गेट थ्रू दिस. मेधा, रिमेंबर, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Mr. Blaster Gaming, whoa bro, I haven't seen you here before. Good to see you. Difference between heat or reaction. अरे यार अनीश, क्या यार, मुझे गूगल बाबा मत बनाओ यार, कम ऑन. ये तो आप कर लो, लुक इट अप ऑनलाइन ब्रो, कम ऑन. ये थोड़ी ना मैं तुम्हारे सवाल दोगे, I'll solve it for you here. I have a lesson plan to cover. Like, I'll be happy to do that if you're not able to find this answer online, right? But I'm sure you'll find this आराम से. अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, you know where to ask me. I'm on iTeachCam. You can ping me there on Telegram and I'll help you out with whatever you're not able to figure out using the internet. Hello IIT JEG. So, ये हमने derive किया delta S system for a reversible process. But it is also valid for this because state S is a state function. Is this okay? ये बात बहुत जरूरी है. Just like we said that delta U is always equal to QB और delta H is always equal to QP. मैं वही चीज बोल रहा हूं कि delta S is always equal to dq reversible by t. Okay, d q भी छोटा हो गया, q reversible by t. This was ds is equal to, इंटीग्रेट करने के बाद हमको फैंसी फॉर्मूला मिला. बट irrespective of the path, irrespective whether मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, irreversible है, कोई भी कहानी है, this equation is still valid, which is what makes your life easy. Just one equation to remember, आसानी से मार्क्स मिलेंगे. I know I'm making it very flowery. ये बोले कि भाई कौन इतना लॉग वॉग याद करेगा, बट एक दो बार डिराइव कर लो, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में. ठीक है, अब थोड़ी और मैथमेटिकल जगलरी करते हैं. ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, राइट? हम लोग सब रिमाइंडर दोस्तों, हम लोग सिर्फ आइडियल गैस की अभी तक बात कर रहे हैं, तभी हम लोग प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. इफ यू हैव सम सॉलिड लिक्विड, यू आर नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस. आइडियल गैस की बात हो रही है. आई कैन रिप्लेस इन दिस एक्सप्रेशन, ये जो V2 by V1 है, I can write it in terms of this expression, right? So V2 by V1 is going to be equal to this expression here. So this now transforms to this using this guy. ये बन जाता है, दिखाऊं कैसे? V2 by V1 को मैंने लिखा P1 T2 by P2 T1. तो P1 by P2 तो एज इट इज हो गया. और एक बहुत ही ऑसम प्रॉपर्टी है लॉग्स की. यू रिमेंबर दिस फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. इसीलिए लॉग ऑफ ऑल ऑफ दिस सिंपली स्प्लिट्स अप इनटू टू लॉग टर्म्स, जो यहीं पे लिखे. देखो यहां पे भी एनआर, यहां पे भी एनआर, यहां पे P1 by P2 यूजिंग हटा देते हैं. ठीक है, थोड़ा आसानी से समझ जाए. यहां पे भी एनआर, यहां पे एनआर, यहां P1 by P2 ये वाला, और यहां T2 by T1. ठीक है, कूल. एनी डाउट्स? मास्टर ब्लास्टर गेमिंग. I'm going to call you Master Blaster Gaming because Sachin, obviously, right? Sachin ji. I know you're Mr. Blaster, but Master Blaster sounds so much cooler. If somebody asks you, that should be your thing. You should be called Master Blaster, not Mr. Blaster. That makes sense. It does, but Master Blaster is cooler. Sorry, I got carried away. ठीक है, so कुछ ये नहीं बदला, दिस इज द सेम, बट ये बदल गया. तो बट यहां देखो, ये भी हम लोग इससे थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर सकते हैं. आई कैन क्लब दीज टू, राइट? बिकॉज बोथ ऑफ दीज हैव द टेम्परेचर टर्म देयर. तो इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं. देखो, ऑल आई डिड वो CV, NCV और NR को ऐड कर दिया, तो ये बन गया N of CV plus R into this. You see where I'm going with this? You remember that CP minus CV is equal to R. Of course, we're talking about 1 mole of gas right now. इसलिए CV, M लिखा है, CP, M लिखा है. यानी कि हम लोग लिख सकते हैं in terms of CP. तो in summary, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की दो इक्वेशन है, एक in terms of CP और दूसरी in terms of CV. This is your CV वाला इक्वेशन. ठीक है, तो easy way to remember is CV and volume come together and कहां गया ये? हाँ, यहां पे अब आ गया, CP and pressure go together. ठीक है, बट यहां पे it's P1 by P2. in case of volume it is V2 by V1. ये इक्वेशन भी यहीं पे लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोग को एक जगह दोनों चीज मिल जाए. NCV ln T2 by T1. ठीक है, this and this are
इक्विवेलेंट, सेम इक्वेशन है, ठीक है। चलो एक क्विक सवाल करते हैं, उठ जाइए सब लोग। फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस सेम एज आइडियल गैस, when its pressure is changed isothermally, isothermally from pi to pf, the entropy change is given by, जब मैंने आइसोथर्मल किया तो लुक्स लाइक ये इक्वेशन आधी हो गई। दो टर्म्स थे ना, एक ln t2 by t1 और दूसरा ln समथिंग एल्स p1 by p2 और ln v2 by v1, ये टर्म्स थे ना। लुक्स लाइक ये तो चला ही गया, बट क्यों चला गया ये समझ में आ रहा है? एनीवन वांट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन? टेक अ मिनट, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए इसको। ये समझ में आ रहा है क्यों चला गया? देखिए सी, ओके, तनु सेइंग बी एंड मास्टर ब्लास्टर इज सेइंग सी। यू हैव दिस एक्सप्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल बाय ts ds, इसको हटा देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। थोड़ा सा लिख के दिया है, क्लियरली लिखा है। मेधा इज आल्सो सेइंग बी, dq रिवर्सिबल du माइनस dw। अब देखो भाई, पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ncv डेल्टा टी इसको जीरो ही कर दो, ओनली थिंग हैव टू इंटीग्रेट इज p dv। अब pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब p dv प्लस v dp इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो ds देखो मैंने p dv को कन्वर्ट कर दिया तो v dp, बट नेगेटिव v dp, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा भाई ये, ठीक है। सो इट विल नॉट बी p2 by p1, it will be p1 by p2. Let me erase that, right? Because of this negative sign of integration. That's all. So pi by pf hoga, not pf by pi. Is that okay? Deepu, I see that we have marked C. That's okay. Anish, excellent. Pi by pf. Hey Naval, what's up? What's up? Seeing you after a long time. Good to see you here. ठीक है, तो hence this is the answer. ठीक है, B and not C. Let's move on to the second law of thermodynamics. अब तो ज्यादा कहानी आई है। Entropy of a universe increases. This is the example that everybody takes ना कि अरे मैं रूम क्यों नहीं साफ कर रहा हूँ, क्योंकि entropy bro. Yeah, sure. But anyway, you're going to use this quite a lot in the whole Carnot cycle physics में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आसान सा चैप्टर है, मुश्किल लगता है, बट द होल थिंग इज कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आसान में मार्क्स मिल रहे हैं यार, जो केमिस्ट्री में मिल रहे हैं, फिजिक्स में मिल रहे हैं, दोनों जगह। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसा ही ना, मॉडर्न फिजिक्स और यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आसान मार्क्स। खैर, सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये तरीका जो हम लोग बोल रहे हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी वांट टू से दैट एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स इंक्रीज। अब यूनिवर्स क्या भला है? यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। याद आया? पहला सेशन याद आया, बाउंड्री वाला, सिस्टम सराउंडिंग। यूनिवर्स मतलब कि सिस्टम के ज्यादा जरूरी है यूनिवर्स। सिस्टम पॉजिटिव हो या ना हो, यूनिवर्स पॉजिटिव होना चाहिए। दैट साउंड लाइक अ dialogue from a like a TV show or a movie, right? System and all of that. Memes going around system. Okay. So, second law of thermodynamics says that the universe की entropy must increase for a spontaneous process. For a spontaneous process. What are spontaneous processes? हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं. Cool. So, for an irreversible process, it is always going to be greater than zero. For a reversible process, it is equal to zero. ठीक है? Why? Because delta S of system and surrounding are the same. ठीक है? Cool. Oh, अच्छा. That's where it came from. मुझे नहीं मालूम था. I didn't know that. I had no idea. I've just seen memes. I have no idea where the memes originate from. But students like you educate me. Discord में सब लोग system बोलते रहते हैं. I have no idea what they meant. But I guess yeah. खैर. Cool. Thermodynamics भी पढ़ लो इसी. Hey, Arslan, what's up, man? Good to see you. Good to see you. अरे आप दिखे नहीं। अच्छा, वो टाइम आपको शायद सूट नहीं किया। 7 o'clock one, is it? But I'm good. आप कैसे हैं? We did an awesome session on stereochemistry. Check it out. I know 12th का सेशन है, बट फिर मजा तो आएगा। खैर, जरूरी चीज है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिस्टम इक्वल टू सराउंडिंग। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है? ऑल्सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब लगेगा अभी, बट व्हेन यू डू इक्विवेलेंस दिस विल मेक सेंस। For an isolated system मतलब कि adiabatic boundary and there is no change in mass, right? I know there's nothing called change in delta mass, but whatever. Closed system, isolated boundary system, वो वाला isolated system. Entropy maximum होती है when system is in equilibrium. ठीक है? ये has to do with a new idea. We're going to talk about that very, very quickly.
हे यशवंत, व्हाट्स अप। इस सवाल को देखते हैं। Considering entropy as a thermodynamic parameter, the criterion for spontaneity of any process is, अरे ये तो हो गया ना, इसमें क्या सोचना है? टेक लाइक 10 seconds and answer this। ये तो हो ही गया, तो नींद में भी हो गया, इतना सिंपल है ये तो। If I were to eliminate things, this does not make any sense। बाकी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है अगर मेरी बात नहीं सुनी हो तो। अगर लास्ट 1 मिनट में मेरी बात सुनी है, देन यू नो कि बॉस द होल पॉइंट इज कि डेल्टा जी ऑफ यूनिवर्स इज लेस देन 0। अभी डेल्टा जी कहां से आ गया? डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी सुना है? डेल्टा जी इज व्हाट वी कॉल गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है? और गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। ओके, नाउ दिस, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा, यूनिवर्स मतलब सिस्टम और सराउंडिंग, ये लिख दिया हमने। अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। ये सिस्टम हम लोग एज इट इज रखेंगे, बट सराउंडिंग को हम लोग उसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करेंगे। रिमेंबर, अगर मैंने कोई सराउंडिंग ली, अ सराउंडिंग इज थॉट टू बी अ हीट सिंक। हीट सिंक यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इसमें जो भी हीट जा रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा है ये प्रोसेस। सो नेगेटिव ऑफ TdS सराउंडिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ डेल्टा एच सिस्टम। Oh, and look at this. Now I have a way, mathematically speaking, of talking about the whole universe, not universe as universe, but a process being spontaneous or not. I have related a global quantity to system, and that is why this idea of delta G या तो Gibbs की energy is very useful. I flipped it on the head. मैंने पहले आपको मैथ्स बता दी। I know bio students मैथ्स पसंद नहीं है and all that, but I think all that is hogwash. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बहुत आसानी से ये सब चीज समझ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा बता ही दूं, क्या ही फर्क पड़ता है। डेल्टा जी यूनिवर्स इज रिलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ यूनिवर्स टू सिस्टम, एंड दिस इज अ स्मॉल छोटा सा डेरिवेशन अबाउट इट। व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी? मैंने थियोरी तो आपको छोटी सी बता दी, बट गिव्स फ्री एनर्जी होता क्या है? यूजफुल वर्क। बहुत लोग बोलेंगे यूजफुल वर्क, सिस्टम पैरामीटर predict the spontaneity of a chemical reaction and also tells you how much work you can get done out of it। सब आंसर दे दिया, गुड जॉब गुड जॉब। सो दिस इज अ स्टेट फंक्शन एंड एनर्जी की ही इसकी यूनिट्स हैं। इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक एच और यू, सेम, और एंट्रोपी, या all of them are state function, all of them are extensive properties, but if you do per mole then it becomes intensive। so for a spontaneous process, मैं सवाल पहले पूछ लिया, पढ़ा बाद दे रहा हूं, स्टाइल है भाई, क्या करें। but delta S universe is greater than 0 and hence we do that thing कि मैंने जो पूरा डेरिवेशन दिखाया था, थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, यानी कि हीट सिंक का जो मैंने आइडिया बताया था, राइट? सराउंडिंग्स हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। एट दैट पॉइंट अगर उसका टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिस्टम, दैट मींस देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम। कूल, ओके। एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग व्हिच इज सम टेम्परेचर। एट दैट पॉइंट इन टाइम, यही मैंने डेरिवेशन आपको दिखाई थी, यहीं पे लिखा है कि सराउंडिंग का हीट चेंज इज गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ सिस्टम। क्यों? वो बैंक वाला आइडिया, अगर सिस्टम से हीट बाहर गई तो कहां गई? सराउंडिंग में ही गई। सिस्टम के लिए बाहर गई, सराउंडिंग के लिए अंदर आई, इसीलिए साइन चेंजेस। ओके, मैं आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं ये सब चीजें, दिस जस्ट मोर ऑफ अ रिकैप ऑफ ऑल ऑफ दैट। कोई डाउट्स है तो पूछ लेना प्लीज। सो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, आई कैन राइट डाउन दीज एक्सप्रेशंस। वही जो मैंने डेरिवेशन किया था फिर से अभी हो रहा है, ठीक है? रिवर्स डायरेक्शन में, मैंने जो हाथ से लिख के दिया था वही चीज उल्टे डायरेक्शन में हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब हम लोग उसको डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स को हमने बोला कि सिस्टम और सराउंडिंग के ऐड करने के लिए, बट सराउंडिंग को हमने लिख दिया कि अरे नेगेटिव डेल्टा एच सिस्टम है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो यू गेट दिस एक्सप्रेशन। एंड फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज डेल्टा एच यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 and this expression always greater than 0. What is this expression? That is what is delta G. ठीक है? Cool. Any doubts, guys? All good? Anish. Oh, Anish has signed his own this thing. सब लोग बहुत शांत हो गए। जब भी थर्मोडायनेमिक्स में इतना वो होता है ना, अरे वाह मास्टर ब्लास्टर जी, गुड टू नो।
मुझे लग रहा था कि ज्यादा भारी हो गया थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि सब लोग बहुत शांत हो गए, बट आई वाज जस्ट चेकिंग कि या ओके, गुड 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 स्टफ, कूल, ऑसम. सो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट एक्सप्रेशन. यू रिमेंबर H इक्वल टू यू प्लस पीवी, मतलब G इक्वल टू जी एच माइनस टी एस. अब ये इस एक्सप्रेशन से ऐसा कैसे मिला? क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज ओनली डिपेंडेंट दिस. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ आपके लिए नहीं आएगा, बट अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन. नीट में नहीं आएगा, बट इट्स कम इन जेई अ कपल ऑफ टाइम्स. सो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है. एंड स्पॉन्टेनिटी कैसे फिगर आउट कर सकते हो? अगर साइन ऑफ डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा टी डेल्टा एच नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तब इट लुक्स लाइक अरे इस पूरी चीज का साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. जब टेम्परेचर लो है तब जो है यस दिस विल बी स्पॉन्टेनियस, मतलब कि इट विल बी नेगेटिव. एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी इज नेगेटिव, एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी इज पॉजिटिव. जस्ट सिंपल मैथ्स यार, कुछ नहीं है इसमें. ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने इसका साइन बस फिक्स कर दिया, इसका साइन फिक्स कर दिया. एनी डाउट्स? ऑल गुड. ये एक शेडी केस था, बाकी केस आसान है. दूसरा केस क्या है? एंट्रोपी पॉजिटिव है भाई, डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा. ठीक है. अदर वे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव ही होगा बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव बिकॉज पॉजिटिव, राइट? सो नेवर गोना बी स्पॉन्टेनियस. दीज आर योर केसेस. लास्ट केस, दोनों पॉजिटिव है तो बस बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी विल बी negative. Why? Because if this is positive and this is positive, this needs to overcome this. Only then it will be negative. ठीक है? So you got 4 cases जो आप आराम से एक टेबल बना कर सकते हो. मैं बोल रहा हूँ टेबल मत बनाओ, अपने सर पे एक और चीज मत लो मग करने की. एक्सप्रेशन लिख लो ना, फिगर इट आउट इन द टेस्ट. दिस इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. आई नो पीपल आर लाइक अरे ये तो बहुत जरूरी चीज है, मग करना जरूरी है. नहीं, मग करना जरूरी है, समझना जरूरी है. ठीक है. Hey Farhan, what's up? ये भी class 11th है. Yes, all clear. Good, good, Medha. What's the physical interpretation of delta G? It's the maximum amount of non-PV work. Non-PV work मतलब non-expansion work. मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी निकालना चाहता हूं या कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, I want to do something else. That tells is happens because of this. Some work is always lost in the whole expansion वाली चीज, but this is not that. Now अगर पॉजिटिव डेल्टा जी है मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है बट हमको करने के लिए उतना देना ही पड़ेगा टू मेक इट स्पॉन्टेनियस. दिस विल बी मोर क्लियर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसका बेस्ट एग्जांपल वहां पे होगा. ठीक है. थोड़ा सा थियोरेटिकल है अभी दिस पार्ट, थोड़ा सा मग कर लो, सॉरी. हाँ ठीक है. एक सवाल लेते हैं. Which of the following pairs of a chemical reaction is certain to result in a spontaneous reaction? Yes, class 11th ही है. बताइए A, B, C या D. इसके लिए आई टोल्ड यू मग नहीं करना है, गिविंग यू द गारंटी मग नहीं करना है. एक्सप्रेशन याद रखो. उसके बाद एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर मतलब पॉजिटिव, S और H है ना. लिख रहा हूं मैं, तुम लोग आंसर बताओ जल्दी. This is negative, this is negative, this is positive, this is positive, this is positive, this is negative. अब ये चारों साइन आप इधर अप्लाई करो और उससे यू कैन से कि सर्टेन रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस मतलब आई वांट दिस टू बी नेगेटिव. दैट्स व्हाट आई वांट, राइट? मेधा सिंह ए, एक्सीलेंट. लेट्स रैटिफाई व्हाट मेधा एंड जितेंद्र चौहान जी, पहले नहीं देखा आपको, गुड टू सी यू हियर. जितेंद्र चौहान जी इज आल्सो सेइंग ए. डू वी एग्री विद जितेंद्र एंड मेधा एंड दीपू? देखो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, टी डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया नेगेटिव. मतलब यस डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव. यस 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 अनीश, गुड जॉब, सही है. ऑल ऑफ यू आर राइट. अगर मैं बोलूं कि एक बार पे हम लोग बात करेंगे देन द होल थिंग बिकम स्टैंडर्ड गिव्स यू एनर्जी. डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट तो आप पहले देख ही चुके हैं. ठीक है. सो इन एनी केमिकल रिएक्शन यू वुड टॉक अबाउट दिस मोस्टली. एंड डेल्टा एस कैसे करोगे? Oh, sorry, hold on. Yeah,
This is the general thing for any chemical reaction. So I gave you idea about gases पहले, then we went on to some, अरे इस तरफ sorry, 12th में इस तरफ होता है, 11th में इस तरफ होता है, तो keep forgetting, 11th में इस तरफ है. Yeah. So we spoke a lot about entropy of gases. Quick recap everything I've done so far. After that, we define entropy of place of all kind of things, and then we said, oh, Gibbs energy related to entropy and to delta H and to temperature. Lastly, we said, okay, for any reaction, this final equation works at constant temperature and pressure, because most reactions happen in these conditions, chemical reactions, right? Similar to the delta H wali thermochemistry wali things that we did. Third law of thermodynamics, entropy of a perfect crystal of all pure elements and compounds is 0 at 0 Kelvin. Now, this is the most theoretical thing you'll ever hear in your life, because you can never reach this. Never reach this. लोग बोलते हैं ना कि भगवान या खुदा ही परफेक्ट होता है, इंसान परफेक्ट नहीं होता है. दिस इज लाइक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट. वी कांट एवर गेट देयर. दिस इज देयर इन थियोरी, बट वी कांट एवर गेट टू दिस परफेक्ट स्टेट. बट थियोरेटिकली डेल्टा इज ऑलवेज गोइंग टू बी एस एट अ गिवन टेम्परेचर माइनस एट एट जीरो, एंड दिस इज जीरो. तो इसीलिए हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं. Constant for given reaction. Sure. Yeah, that's it. Let's do a couple of questions and then I think we'll wrap things up. Let me just see. और क्या क्या बचा है. छोटा सा एक सेक्शन और बचा है, which is equilibrium and thermodynamics का, and then we'll wrap it up. We have a couple of minutes to go. ये सवाल क्या करें? इस सवाल को होमवर्क सवाल समझ लो, ठीक है? Take a screenshot of this, solve this. I'll quickly cover that theory and then we call it a day. It's okay. ये सवाल आप लोग कर लेना, बहुत सीधा साधा है. खैर, there are two questions in this. The second one also is here, which is the next one. Next one is right here. ठीक है, ये वाला सवाल कर लेते हैं. एक्चुअली फॉर अ रिएक्शन ये वाला कर लेते हैं. H2O4 liquid giving gas, डेल्टा U is given to you, डेल्टा S is given to you, डेल्टा G क्या होगी वैल्यू निकाल लो. ये वाला कर सकते हो. डेल्टा G is डेल्टा H minus T delta S using this expression. Can we try this out? Take a minute to do this. Yeah, absolutely. Some Survo Sahaji, 100%. You're going to have to join the Telegram link. That's in the description. नीचे काफी links होंगे ना. Just scroll through the L1 to L6 वाले links. So उसके नीचे ही Telegram का भी link है. Join that and you'll get the PDF right after the session. सवाल बताओ, जवाब बताओ. The only trick here, you gotta go one step deeper and do delta H is delta U plus delta NGRT. इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर स्लाइड लिखा होता डेल्टा NG is equal to 2. अब ये एक बार हो गया तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई नीड टू एंश्योर दैट आई मल्टीप्लाई दिस 1000 वाला फैक्टर बिकॉज ऑफ किलो. किलो क्या, किलो कहाँ गया, ये है ना किलो कैलोरी, इसलिए किलो का ये 1000 डालना जरूरी है. उसके बाद तो हो ही सकता है. ए सीयूम, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग, हेलो. एब्सोल्युटली. सो Ng is 2. Are you guys okay with that? यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 0 मोल है. क्यों? ये तो लिक्विड है, तो डेल्टा Ng is equal to 2. ये एक बार कर दिया, तो बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 600 into 2 is 1.2. 1.2 नहीं, कितना 6.12 हो गया. हाँ ठीक है. तो ओ होल्ड ऑन, अरे ये तो सिर्फ डेल्टा H हुआ. अभी डेल्टा S तो हमने टी डेल्टा किया ही नहीं, ये तो डेल्टा H हुआ. हाँ, माइनस टी डेल्टा S. डेल्टा S is positive. So you got to subtract this much. So I've added 1.2, I've subtracted 0.6. So in addition, I've just added 0.6, right? इसलिए आंसर हो गया 2.7 किलो कैल. बट एक मिनट, थोड़ा सोचना पड़ेगा. Is this correct? Delta U is this. Do you guys agree with this? Deepu saying D though. कुछ अलग है. Oh, very interesting. That's very interesting. See you. Good to see that. मैंने पूरा एक्सप्रेशन तो बताया, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द आंसर राइट नाउ? डी बोल रहे अभी भी, ए बी नहीं होगा. आई थिंक इट्स इधर ए और बी. ये वाला हटा देते हैं, डी तो नहीं हो रहा है. देखो 2.1 किलो कैल प्लस 1.2 किलो कैल माइनस 0.6 किलो कैल, मतलब कि 2.1 प्लस 0.6 which is just 0.7 है ना. So I feel, I'm just going to cross check this one more time. Delta G is delta H minus T delta S. Delta H is delta U plus delta NGRT. हाँ सब ठीक ही कर रहे हैं. एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक ही लग रहा है. Yeah, this looks good.
भाई सेकंड ऑप्शन क्यों होगा भाई? मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, सेकंड क्यों होगा बताओ? ओ देखो, गुड जॉब, लवली, लवली। द आंसर इज बी, एक्सेलेंट जॉब। 2.1 प्लस 1.2 बट -6, ध्यान से करो, माफ करो, सॉरी मैंने अगर आपको कंफ्यूज किया, बट दैट वाज इंटेंशन। यार थोड़ा तो एफर्ट लगाओ, इतना स्पून फीडिंग तो नहीं होगी ना। दिस इज नॉट 0.6, दिस इज 6, ये हो गया 6000, है ना? तो यू सब्ट्रैक्टिंग 6, तो व्हाट यू गेट इज 3.2, 3.3 minus 6, hence is minus 2.7. Good job, lovely, excellent. सब लोग उठे हुए हैं, it's good to see. I can't believe I'm able to understand Bengali, but yeah, आप हमेशा सही हो सियोंग जी, you're perfect. Great, तुम मुझे बांग्ला भी सिखा दोगे, बढ़िया है। Last couple of minutes and then we'll call it a day. डेल्टा जी तो हम लोग बहुत डिटेल में बात ही कर चुके हैं, और ये भी हम लोग को मालूम है, एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज। नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जस्ट लाइक व्हाट वी डिड इन डेल्टा एच, वी कैन डू इट हियर एज वेल। ओके, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स के हम लोग कर सकते हैं। एट अ पॉइंट यू विल गेट अ पॉइंट वेयर डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इक्विलिब्रियम, दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, नॉट पॉइंट इन टाइम। अब नहीं, अब ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया बंगाली, अभी यार इतना नहीं समझ में आता मुझे। ठीक है, you have this amazing expression called delta G equal delta G naught plus RT ln Q, जो अभी सर के बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, but when Q is equal to K, delta G is equal to 0, so you get a delta G naught equal to minus RT ln K। ठीक है, अभी हो सकता है सर के ऊपर चला जाए, बट हम लोग उसको डिटेल में करेंगे अगले सेशन में, नॉट अगले सेशन में, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बला है वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे, विच विल बी ऑन ट्यूसडे, नहीं आज ट्यूसडे, सैटरडे, विच विल बी ऑन सैटरडे। वी गॉट मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट। अब इसमें कुछ चीजें लिखी हैं फॉर अभी, जस्ट टेक इट एज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। आई नो सर के ऊपर जाएगा, अरे ये के क्या है क्या है, करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे दोस्तों, बट सिंस एनसीईआरटी में जबरदस्ती इस चैप्टर में दिया तो मैं क्या कर रहा हूं, विल डू इट प्रॉपर्ली इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑल राइट, कूल, ओह नाइस 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 यू, कूल। ठीक है ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड I'm going to skip the summary bit. I'll just send you the PDF. You can check it out. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, otherwise we'll call it a day. ठीक है, cool. Yeah, मुझे तो काफी मजा आया करने में, and we are done with thermo, guys. I thought I really liked thermo, and it's like one of my favorite chapters to teach. But I realized I probably like equilibrium even more. So we're going to have a lot of fun. So yeah, and अगर आप 12th में हो तो do check out the stereochemistry, हम लोग ने organic शुरू कर दिया है। So we start equilibrium कब से? Saturday से first session of equilibrium. Next session is Thursday, which we will do 12th grade stuff. Awesome, awesome. See you all, and yeah, keep teaching me new languages. This was interesting, an interesting end to this session. Chalo, good night. Have a good Tuesday. See you around. Bye. That was Thermo.